السلام علیکم ناظرین، روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ پھر ایک بار RTC بس ہوئی حادثے کا شکار۔ ضلع رنگا ریڈی میں پیش آیا خوفناک سڑک حادثے میں 21 افراد ہوئے ہلاک و کئی افراد ہوئے شدید زخمی۔ عوام RTC بس میں سفر کرنے سے ہو رہے خوفزدہ۔ پرجاوانی پروگرام کو اہمیت دیتے ہوئے فی الفور مسائل حل کریں۔ نظام آباد کلکٹریٹ میں انعقاد عمل میں لائے گئے پرجاوانی میں ایڈیشنل کلکٹر انکت نے ذمہ دار عہدیداروں کو دی ہدایت۔ جنم باٹا پروگرام کے تحت تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا کا عادل آباد میں دورے کے موقع پر مقامی عوام کی جانب سے کیا گیا شاندار پیمانے پر استقبال۔ موڑتاڑ سے تعلق رکھنے والی امرین بیگم کی صحت ناساز ہونے کے باعث طبی امداد کے لیے سابقہ وزیر بالکنڈہ MLA پرشانت ریڈی نے 2 لاکھ کی LOC کی حوالے۔ اصلاحی معاشرہ کمیٹی کی جانب سے نوجوانوں میں منشیات کی روک تھام، معاشی برائیوں کے خاتمے کے لیے 4 نومبر کو مسجد محمدیہ میں اصلاحی معاشرہ جلسہ عام کا انعقاد، عوام سے شرکت کی اپیل۔ بچکندا میں تعطل کا شکار سڑک کے کاموں کے لیے نوجوانوں نے کیا احتجاج منظم۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ بچکندا میں سڑک کی توسیع میں تاخیر کے خلاف نوجوانوں کا سڑک پر احتجاج۔ تجارتی مراکز بند، پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات قابو میں کیے۔ بچکندا میں جاری سڑک کی توسیع اور سینٹر لائٹنگ کے کام میں تعطل کے سبب آج نوجوانوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ تجارتی علاقے بند کرتے ہوئے احتجاجی نوجوانوں نے RTC بس اسٹینڈ کے روبرو مین روڈ پر پلے کارڈ تھامے ہوئے حکومت کے خلاف زبردست دھرنا دیا اور حکومت سے فوری طور پر کام مکمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ سڑک کی توسیع کے کام میں غیر ضروری تاخیر سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سڑک کے دونوں اطراف ملبہ اور ادھورے کام کے باعث گاڑیوں اور راہ گیروں کی آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے، جبکہ گرد و غبار کے زیادہ علاقے کے مکینوں کی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ متعلقہ محکمے فوری طور پر سڑک کی توسیع اور سینٹر لائٹنگ کے کام کو مکمل کرے تاکہ عوام کو سہولت میسر ہو سکے۔ దీనికి కారణం ఒకటి, గత 2.5 సంవత్సరాల నుండి బిచ్కుంద మున్సిపాలిటీలో శాంక్షన్ చేయబడ్డ రోడ్డు ఎందుకు నిలిపివేశారు? ఆ పనులు ఎందుకు ప్రారంభించట్లేదు? ఎవరి నిర్లక్ష్యం దీనికి వహిస్తున్నారు? రోడ్డాన్ని గుంతల్లో బైకులు పడి వాహనాలు పడి ప్రాణాలు కొట్టుకపోతా ఉన్నాయి, చచ్చిపోతా ఉన్నారు. చచ్చిపోయినా కూడా అధికారులు చూస్తలేరు. తర్వాత ఏదైతే ఈ రోడ్డు మీద అంబేద్కర్ చౌరస్తా నుండి కమ్మర్గుడి వరకు దుమ్ము ధూళితో వ్యాపారస్తులు కానీ వాహనదారులు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి తీవ్ర ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంది. దీనికి సంబంధించిన అధికారులు కానీ నాయకులు కానీ ఎవరు స్పందించడం లేదు. దీనికోసము ఈరోజు మేము అందరం కలిసి బిచ్చుకున్న యువకులు అందరం కలిసి اصلاحی معاشرہ کمیٹی کی جانب سے نوجوانوں میں منشیات کی روک تھام، معاشی برائیوں کے خاتمے کے لیے 4 نومبر کو مسجد محمدیہ میں اصلاحی معاشرہ جلسہ عام کا انعقاد، عوام سے شرکت کی اپیل۔ شہر نظام آباد میں بڑھتے ہوئے جرائم کی روک تھام، نوجوانوں میں منشیات کے سبب اور سماج و معاشرہ میں پائی جانے والی سماجی و معاشرتی برائیوں کے اسناد کی عرض سے ایک اہم پروگرام اصلاح معاشرہ اور ہماری ذمہ داری کے عوام سے قلب شہر میں واقع محمدیہ مسجد میں بتاریخ
4 नवंबर 2025 बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें रियासत तेलंगाना के मशहूर व मारूफ आलिम दीन जानशीन आखिल हुस्सामी हज़रत मौलाना मोहम्मद जाफ़र पाशा साहब अमीर व अमारत मिल्लत इस्लामिया का बसीरत अफरोज़ खिताब होगा। इसके अलावा शहर निज़ामाबाद के मोतबर उलमा इकराम मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब, मौलाना खिज़र अहमद ख़ान क़ासमी साहब, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी साहब, मौलाना मिर्ज़ा हाशिम बेग हुस्सामी साहब, मौलाना मुफ्ती इब्राहिम ख़ान साहब, मौलाना मोहम्मद ग़ुलाम रसूल क़ासमी साहब, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब व दीगर उलमा इकराम के खिताबात होंगे। नीज़ हाफिज़ मोहम्मद लायक ख़ान की निगरानी में महल्लावारी सतह पर साले इनक़िलाब के लिए इस्लाह माशरा कमेटियाँ तश्कील देते हुए हर महल्ले में यौम इस्लाही गश्त का आगाज़ किया जाएगा, ताकि मुस्लिम समाज व माशरे में आए दिन रोनुमा होने वाले बेरा रवी के वाक़यात को रोका जा सके। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद माह से शहर में कत्ल व फुजूर और मुख्तलिफ़ किस्म के नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल आम होता दिखाई दे रहा है, जिसकी रोकथाम माशरे के हर फ़र्द की अपनी दीनी व अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है। इसी हवाले से ये प्रोग्राम मुनक़िद होने जा रहा है। शहर निज़ामाबाद के उलमा, हुफ़्फ़ाज़, आइम्मा मस्जिद और दीनी तंजीमों के ज़िम्मेदारान और अवाम व ख़वास से शिरकत व इस्तिफ़ादे की गुजारिश की जाती है। मौजूदा हालात में निज़ामाबाद शहर और ज़िले के जो हालात है उसको पेश नज़र रखते हुए मस्जिद मोहम्मदिया कॉलोनी में एक जलसे आम बउनवान इस्लाह माशरा और हमारी ज़िम्मेदारियाँ के उन्वान से 4 नवंबर बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा मुनक़िद किया गया है, जिसमें रियासत तेलंगाना के मशहूर मारूफ मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना हुस्सामुद्दीन साहब सानी आकिल अल मारूफ जाफ़र पाशा साहब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना तशरीफ़ लाएंगे और उसके अलावा मकामी उलमा और क़ाइदीन उस जलसे में शरीक होंगे, वो ख़िताब करेंगे। जलसे का अहम उन्वान इस्लाह माशरा और उसकी गर्ज ये है कि नौजवानों में, ख़ास तौर से हमारे निज़ामाबाद के नौजवानों में क्राइम और जराइम की बढ़ती शरह को देखकर उसके रुझान को रोकने के लिए और जो मनशियात और नशे की नशावर चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से जो हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए बुराइयों का सद्देबाब कैसे हो और किस तरह इन जराइम से हम हमारी नौजवान नस्ल की हिफाजत की जाए, उस इजलास में सबकी कीमती बातें होंगी और सब अपने अपने ज़रूरी ख्यालात का इजहार करेंगे और यहीं से इस्लाह माशरा की मुहिम पूरे शहर नहीं बल्कि ज़िले भर में चलाई जाएगी। ये पहला उस कड़ी का पहला जलसा होगा 4 नवंबर बाद नमाज इशा मस्जिद मोहम्मदिया में। सभी हजरात उसमें ज़रूर ज़रूर शरीक। निज़ामाबाद में मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम उम्मीद वक्त पोर्टल पर शऊर बेदारी व रहनुमाई प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। निज़ामाबाद के नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल में मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम उम्मीद वक्फ पोर्टल के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक शऊर बेदारी व रहनुमाई प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ। ये प्रोग्राम अहमद अब्दुल अज़ीम साहब की निगरानी में अमल में आया, जिसमें औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार से मुतालिक शुरका को तफसीली रहनुमाई फ़राहम की गई। कमेटी के ज़िम्मेदारान मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब, मौलाना हैदर क़ासमी साहब, मौलाना आबिद क़ासमी साहब, मुफ्ती तक़ीउद्दीन निज़ामी साहब, नसीरुद्दीन साहब, हज कमेटी अफजलुद्दीन साहब, साबिक़ सदर ईदगाह कमेटी सैयद नजीब साहब अली बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद अवाम में औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के शऊर को आम करना और वक्फ पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाना है। मेहमान मुक़र्रर हैदराबाद मोहम्मद उस्मान अली साहब ने उम्मीद पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार को तफसीलात के साथ पेश किया। मज़ीद बताया गया है कि इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मक़ामात पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मराकिज़ क़ायम किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्मीद वक्फ पोर्टल से मुस्तफ़ीद हो सकें।
मज़कूरा प्रोग्राम में ज़िला निज़ामाबाद व कामरेड्डी से सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस्लाम में खिदमत खल्क़ को बुलंद दर्जा दिया गया है, इसलिए उम्मत मुस्लिमा को खैर उम्मत कहा गया है। दारुल उलूम निज़ामाबाद व मस्जिद कौसर अली में खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास के मौके पर बाइत्तेफाक आरा मोहम्मद यूसुफ को सदर, मोहम्मद फ़ारूक को मुअतमद उमूमी मुंतखब किया गया है। निज़ामाबाद 2 नवंबर रास्ते इस्लाम में खिदमत खल्क़ को बुलंद दर्जा दिया गया है, इसलिए उम्मत मुस्लिमा को खैर उम्मत कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। कुरान की इब्तिदाई आयत भी इस ज़िमन में नाजिल की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को खैर उम्मत के खिताब से नवाजा है। इस पर भटकी हुई इंसानियत को राह रास्त पर लाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाचे दीनी मदारिस इस्लाम के दीनी मदारिस इशाअत दीन के अहम क़िले करार दिए गए हैं। ऐसे मुनासिबत से जो तारीख़ खुतब शाही मस्जिद है, इसके इहाते में एक दीनी दरसगाह दारुल उलूम निज़ामाबाद मस्जिद कौसर अली के नाम से क़ायम की गई है। ये मदरसा जो एक मुस्तंद इंतज़ामी कमेटी के ज़ेर निगरानी में चल रहा है, हिफ्ज़ कुरान मजीद, शोबा नाजरा व तजवीद व कुरान मजीद असरी उलूम से मिल्लत इस्लामिया के नौनिहालों को तालीम से आरास्ता करने के लिए मसरूफ़ खिदमत है, जहाँ पर अहल खैर हजरात के ताउन से चल रहा है। वाज़ेह है कि 2 माह क़ब्ल इंतज़ामी कमेटी के सदर मिर्ज़ा नसीर अहमद बेग रहलत के बाद सदर का ओहदा खाली था। इस ज़िमन में आज एक अहम इजलास मुनक़िद करते हुए बाइत्तेफाक आरा मोहम्मद यूसुफ को सदर की हैसियत से नामज़द किया गया और इसी तरह मोहम्मद फ़ारूक को मुअतमद उमूमी मुंतखब किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद नईम खान की तिलावत कुरान मजीद से हुआ और प्रोग्राम का इख्तिताम मोहम्मद अब्दुर्रऊफ़ आज़मी शोबा नशर इशाअत के शुक्रिया के साथ अमल में लाया गया। इस मौके पर शिरकत करने वालों में सैयद शरीफ सरपरस्त आला मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद फ़ारूक, मोहम्मद अनवरुल्लाह खान, अब्दुल हलीम खान, मोहम्मद अब्दुर्रऊफ़ आज़मा, अब्दुल हफीज़ खान, अब्दुल करीम, मोहम्मद अब्दुल करीम व मिर्ज़ा फ़ारूक बेग, अहमद मुहियुद्दीन अंसारी, एडवोकेट नदीम खान, अब्दुल मजीद खान व दीगर असातिज़ा साहिबीन में मौलाना मोहम्मद मुख्तार साहब, हाफिज़ मोहम्मद नईम खान, हाफिज़ मोहम्मद आरिफ, हाफिज़ मोहम्मद मज़हर, हाफिज़ शेख समीर। उम्मीद है कि एडिटर साहिबीन से पुरखुलूस अपील है कि इस मदरसे के खैर को शाये फरमा कर हमेशा की तरह शुक्रगुजार होने का मौका इनायत फरमाएँ। दारुल उलूम मस्जिद कौसर अली के इंतखाबात आज सरपरस्त आला अली जनाब अलहाज सैयद शरीफ साहब की सदारत में इजलास मुनक़िद हुआ और उनकी सरपरस्ती में इजलास के अंदर बाइत्तेफाक खारा अली जनाब यूसुफ खान साहब को सदर दारुल उलूम मस्जिद कौसर अली मुंतखब किया गया है और नाच इसको मुअतमद उमूमी की हैसियत से मुंतखब किया गया है और खाजिन के पोस्ट पे अली जनाब फ़ारूक बेग साहब बरकरार है। इसी तरीके से सरपरस्त आला और तमाम अरकान मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात से मुत्तफ़िक़ है और मैं तमाम अहबाब का सब इंतज़ामी कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब लोग हमारे इस नई बॉडी का ताउन करेंगे। हर वक्त जिस तरीके से अबरार साहब के दौर से नसीर साहब के दौर में काम किए हैं, उससे भी बढ़ चढ़ कर हम यूसुफ साहब के हाथ पैर बन के सदारत में इंशाअल्लाह बेहतरीन काम अंजाम देंगे, मदरसे में और मस्जिद के लिए काम अंजाम देंगे। और कहते हैं मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं सदर इंतखाब पर तमाम मेम्बरान कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सबका ताउन मुझे हासिल रहा है और आइंदा भी रहेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से अपनी डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी परफॉर्म करूँगा। प्रोग्राम साहब मस्जिद के ताल्लुक़ से या मदरसे के ताल्लुक़ से मैं इन हालात को पेश करने के लिए तैयार हूँ और तमाम मेम्बरान कमेटी और अहलियान निज़ामाबाद से गुजारिश करता हूँ कि मस्जिद का कोई भी हो या मदरसा कोई भी मामला हो,
मेरे से हम डायरेक्ट मुशावरत करके अपना हल निकाल ले सकते हैं। रियासत में खांगी डिग्री कॉलेज में आज से गैर मुआयना हड़ताल करते हुए बंद की गई अपील। ज़ेर इल्तवा स्कॉलरशिप फौरी तौर पर जारी करने का किया मुतालबा। जिला निर्मल के मुकाम पर खांगी डिग्री कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत 2 साल और बसर इख्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत 2 सालों यानी 4 सालों से डिग्री कॉलेज फीस रियम्बर्समेंट की इजराई अमल में नहीं ला रहे हैं। ज़िला में वाक़ हर एक खांगी डिग्री कॉलेज के लिए 2 से 3 करोड़ तक के बाक़ियात थे। इन्होंने कहा कि तलबा से किसी भी किस्म की फ़ीस की उसूली अमल में ना लाकर सिर्फ फ़ीस रियम्बर्समेंट स्कॉलरशिप फ़ंड से ही कॉलेज को चला रहे हैं, लेकिन अब फ़ंड के बग़ैर कॉलेज को चलाना मुमकिन नहीं। इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए फ़ंड की मंजूरी अमल में लाने का मुतालबा करते हुए गैर मुआयना हड़ताल करते हुए बंद करने के ताल्लुक़ से वजाहत किया। हैदराबाद में रियासती हुकूमती मुशीर के तौर पर नामजद होने वाले बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी से SSR तालीमी इदारे के चेयरमैन मारिया गौड ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। हैदराबाद में रियासती हुकूमती मुशीर के तौर पर तकर्रुर होने वाले साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी से SSR तालीम इदारे के चेयरमैन मारिया गौड ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि सुदर्शन रेड्डी आने वाले दिनों मज़ीद आला ओहदे हासिल करते हुए अवाम की ताहयात तक खिदमत करने की ख्वाहिश की। बरोज़े इतवार को साफ पहर में होने वाली बारिश की वजह से गीली होने वाली धान के ज़ख़ीरे को कलेक्टर की जानिब से बाइल्ड राइस मिल को मुंतकिल करने का मार्केट कमेटी चेयरमैन M गंगा रेड्डी ने किया इजहार। मुदकपल्ली देहात में किसान बरोज़े इतवार को साफ पहर में होने वाली बारिश की वजह से मुश्किलात का सामना करने का मुशाहिदा करने वाले मार्केट कमेटी चेयरमैन M गंगा रेड्डी ने फौरी तौर पर कलेक्टर और JC के अलावा राइस मिल और नस से इस मसले पर तबादला ख्याल करते हुए फिलफौर बारिश की जद में आने वाले धान के ज़ख़ीरे को बाइल्ड राइस मिल को मुंतकिल करने का इजहार किया। విపరీతమైన వర్షం పడ్డది మణికిప్ప ముదక్పల్లి మోపాల్ ఈ 2 సొసైటీలకు ఇప్పుడు మీకు ఇస్తున్నారు మీరు పోయి కొంచెం లెటర్ పెట్టుకొని తీసుకుంటే నేను జేసీ గారికి చెప్పినా జేసీ గారు కూడా మీకు ఇస్తున్నారు ఒక 10 లారీలు ఇలా పంపగలుగుతారా ఒక 10 లారీలు ఒకటే పని వస్తాయి ఒకటే పని వెళ్ళిపోతాయి ఇక మనకు ఇక్కడ ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు చూడండి ఇక మంచిప్ప ముదక్పల్లి మోపాల్ ఈ మూడుకి जिला रंगारेड्डी में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। जिला रंगारेड्डी के चिड़ला के करीब खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक चिड़ला के मिर्ज़ापुर में एक RT बस को कंकड़ से भरी हुई टिप्पर ने टक्कर मारी और बाद में बस पर उलट गई। इस होलनाक हादसे में 21 अफराद हलाक हो गए जबकि कई दीगर शदीद ज़ख्मी हुए हैं। हादसे में एक खातून की मौके पर ही मौत हो गई जबकि इसके शौहर बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। इनके तीनों बच्चे मौजूदाती तौर पर महफूज रहे। पुलिस ने फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और दबे हुए मुसाफिरों को बस से निकाला। बच्चे अपने माँ बाप के लिए रोते हुए जाए हादसे पर बैठे दिखाई दिए जिससे मंजर निहायत दर्दनाक बन गया। तफसीलात के मुताबिक तांडू डिपो की RTC बस तांडू से हैदराबाद जा रही थी कि चिड़ला मंडल के मिर्ज़ापुर के करीब तेज़ रफ्तार टिप्पर बेकाबू होकर सामने से RTC बस से टकरा गई और बाद में बस पर उलट गई। भारी मकदार में मौजूद कंकर बस के अंदर गिरने से कई मुसाफिर दब गए। हादसे में बस ड्राइवर समेत पिछली नशिस्तों पर बैठे कई मुसाफिर हलाक हो गए। फौत होने वालों में एक 10 माह का शेर ख़ार बच्चा भी शामिल है। कई मुसाफिर मलबे तले दबकर दम तोड़ गए। ताहम बस कंडक्टर आधा हिस्से से जिंदा बच गए हैं। जागृति जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत सदर के कविता ने आदिलाबाद का किया दौरा। साबिक़ा MP तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने पहले से मुकर्रर करदा शेड्यूल के मुताबिक आज सुबह के वक़्त आदिलाबाद को पहुंच चुकी है। इस मौके पर इन्होंने पहले मरहले के तौर पर
कुमरम भीम के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि तेलंगाना की जद्दोजहद तारीख में कुमरम भीम की जानिब से फराहम करदा खिदमात नए नस्ल के लिए मुतासरा कुन है। इन्होंने कहा कि जागृति के तहत नौजवानों को बेदार करते हुए तेलंगाना की सकाफत व रिवायत की हिफाजत करना ही हमारा अव्वलिन मकसद होने का इजहार किया कि कविता की आमद के मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। धान खरीदी सेंटर का एडिशनल कलेक्टर ने ज़री कमीशन मेंबर जी गंगाधर के हमरा लिया जायजा। माकलूर मंडल के मुकाम पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए धान के ज़ख़ीरे की खरीदी सेंटर का एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने रियासती ज़री कमीशन मेंबर गडगू गंगाधर के हमरा जायज़ा लेने के दौरान किसानों से अब तक जमा किए गए धान के ज़ख़ीरे के बारे में मरकज़ के मुंतज़मीन से तफसीलात हासिल की और किसानों की सहूलियात के लिए मराकिज़ में दस्तयाब होने वाले सहूलियात का जायज़ा लिया और धान खरीदी सेंटर पर धान का ज़ख़ीरा लाने वाले किसानों से बात करते हुए खरीदी मरकज़ में दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया और इसके अलावा एडिशनल कलेक्टर ने हाल ही में होने वाली बारिश से मुतासरा फसलों के किसानों को फिक्रमंद ना होने का इजहार किया क्योंकि हुकूमत बारिश की जद में आने वाले धान के ज़ख़ीरे की खरीदी अमल में लाते हुए मुनासिब कीमत फराहम करने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। స్థాయిలో పర్యటిస్తూ ఉన్నాం। దానిలో భాగంగా మన జిల్లాకు సంబంధించి మన మాక్లూరు మండలంలో గతంలో కొన్ని నాకు కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి కనుక మరి అక్కడికే మరి స్వయంగా వెళ్ళి పరిష్కరిస్తే బాగుంటుంది, ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది, లేక రైతన్నలను కలిస్తే వాళ్ళ ఆవేదన వారి బాధలు తెలిస్తే దాన్ని బట్టి సంబంధిత అధికారులకు మేము డైరెక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు। వారి ద్వారా డైరెక్షన్ ద్వారా మరి ఎన్నో కొన్ని రైతులకు సమస్యలు తీరుతాయి కనుక రైతుల్లో భాగంగా మరి కొన్ని సబ్సిడీ గురించి కొన్ని రిప్రజెంటేషన్ చెప్పడం జరిగింది, వాటిని కూడా పరిశీలనకు తీసుకుంటున్నాం। అదేవిధంగా ఇక్కడ మరి మన కళ్ళాలకు సంబంధించి గతంలో కూడా ప్రభుత్వం ఆలోచించింది। కొందరు చెప్పారు మాకు బోనస్ వచ్చింది అని, వాళ్ళ సెల్ ఫోన్ కూడా ఉంచారు, నాకు రాత్రి బోనస్ పడ్డదనేసి వాళ్ళ సంతోషాన్ని వెలిపించారు। ఇంకా మిగతా వాళ్ళే కూడా అందరు బోనస్ కూడా ఎవరైనా రాకుండా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు, అందరు బోనస్ కూడా క్లియర్ అవుతుంది। एडपल्ली मंडल के जांगापेट देहात में वाक़े खरीदी सेंटर में गीली होने वाले धान के ज़ख़ीरे का PACS चेयरमैन M नरेंद्र ने लिया जायज़ा। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर PACS चेयरमैन M नरेंद्र ने जांगापेट देहात में वाक़े खरीदी सेंटर में गीली होने वाले धान के ज़ख़ीरे का जायज़ा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बरोज़े इतवार को साफ पहर होने वाली बारिश की वजह से किसानों की जानिब से काश करदा पैदावार को सुखाने के बाइस भारी नुकसान हुआ है। हुकूमत बारिश से मुतासरा किसानों की पैदावार को खरीदी अमल में लाते हुए मुनासिब कीमत फराहम करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि मंडल से मुतालिक मौज़ूआत में धान खरीदी सेंटर का क़याम अमल में लाते हुए धान के ज़ख़ीरे को खरीदी अमल में लाने का इजहार किया। చాలా వర్షం పడి నష్టం జరిగింది, సంచులన్నీ కూడా నానిపోయినాయి, చాలా తీవ్రంగా నష్టపోయిన రైతులు ఈ అకాల వర్షాల వల్ల ఎప్పుడు వస్తుందో వర్షం అనేది తెలియనిటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది। కాబట్టి ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అట్లాగే జిల్లా కలెక్టర్ గారు, ఎంఆర్ఓ గారు, అధికారులు అందరూ కూడా పరిశీలించి ఈ తడిసినటువంటి ధాన్యాన్ని వెంటనే రైస్ మిల్లకు పంపించే విధంగా తగిన చర్యలు తీసుకొని రైతులకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాం। అట్లాగే ఈ వర్షాకాలంలో తడిసినటువంటి ధాన్యాన్ని, మరి ఎక్కువ తడిసినటువంటి ధాన్యాన్ని ఈ రైస్ మిల్లు కాకుండా బాయిల్డ్ రైస్ మిల్లకు కూడా కొంత కేటాయిస్తే రైతులు నష్టపోకుండా వెంబడెంబడే వెళ్ళిపోతాయి తడిసినటువంటి వడ్లు అని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తున్నాం। కాబట్టి ఈ ప్రయత్నాన్ని కూడా అధికారులు చేయాలని చెప్పేసి బాయిల్డ్ రైస్ మిల్ కూడా కొంత కేటాయించాలని చెప్పేసి మేము ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం। इंतहाई आला व असर वाली तहकीकी तरक्की प्रोजेक्ट के लिए हिंदुस्तान हिमायत करने का वज़ीर आज़म मोदी ने किया इजहार। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में मज़ीद तरक्की के लिए और भारत टैग पावर हाउस के तौर पर बढ़ाने के लिए शोबेजात में मौजूद खानगी सरमायाकारों की जानिब से हौसला अफजाई की जा रही है। इस हिस्से के तहत न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में 1 लाख करोड़ की तहकीकी तरक्याती फ़ंड का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मोदी ने अपने खिताब के दौरान कहा कि
मुल्क में जदीद एजादात को मज़ीद इजाफा करने के मकसद के तहत हमारी हुकूमत खिदमत अंजाम देने का इजहार। मोड़ताड़ से ताल्लुक़ रखने वाली अमरीन बेगम की सेहत नासाज होने से तिब्बी इमदाद के लिए साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने 2 लाख का LOC किया हवाले। मोड़ताड़ मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली अमरीन बेगम की नासाज सेहत के बाइस निम्स हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद के लिए शरीक होने के ताल्लुक़ से मुकामी अवाम नुमाइंदों की जानिब से MLA प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाने के बाद MLA ने फौरी तौर पर रद्द अमल जाहिर करते हुए मेयारी तिब्बी इमदाद के लिए 2 लाख का LOC मंजूर करवा के LOC की कापी इनके अफराद ने ख़ानदान को आज हैदराबाद के क़ियाम गाह में हवाले किया। इस मौके मुतासरा के अफराद ख़ानदान ने साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी को इजहार तशक्कुर किया। प्रजावाणी प्रोग्राम के तहत शिकायत कुनंदगान से 27 शिकायतों कबूल करने का CP साई चैतन्य ने किया इजहार। जिला निज़ामाबाद पुलिस दफ्तर में पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य की क़ियादत में प्रजावाणी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर CP ने शिकायत कुनंदगान से मुतालिक मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए इससे मुतालिक ओहदेदारों को हिदायत दी। आज इनेकाद अमल में लाए गए प्रजावाणी प्रोग्राम के तहत ज़िला के मुख्तलिफ इलाक़ों से आने वाले शिकायत कुनंदगान के दरख्वास्तों को कबूल करके इसको फौरी तौर पर हल करने के लिए इससे मुतालिक पुलिस स्टेशन में SI और CI को फ़ोन के तहत बात करके मसाइल की सूरत हाल और इसके हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई। इस मौके पर CP ने कहा कि अवाम बेखौफ होकर तीसरे फरीक के बग़ैर किसी भी किस्म की पैरवी के बग़ैर रज़ाकाराना तौर पर महकमे पुलिस की खिदमत से इस्तेफ़ादा हासिल करने का इजहार किया। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुतालिक शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने की एडिशनल कलेक्टर अंकित ने ओहदेदारों को दी हिदायत। ज़िला निज़ामाबाद कलेक्टरेट दफ्तर में अवामी मसाइल के हल के लिए मुनक़िदा प्रजावाणी प्रोग्राम में 128 शिकायत मौसूल हुई, जो कि ज़िला के मुख्तलिफ इलाक़ों से आने वाले शिकायत कुनंदगान से इनसे मुतालिक दरख्वास्तों को एडिशनल कलेक्टर के अलावा DRDO सायागौड और निज़ामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी को हवाले किया। ताहम एडिशनल कलेक्टर ने मौसूल होने वाले दरख्वास्तों का जायज़ा लेते हुए अवाम से मुतालिक शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। शहर निज़ामाबाद के खिला रोड पर वाक़े गोल्डन जुबली कॉलेज के ज़िला इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने की अचानक तनक़ीद। शहर निज़ामाबाद के खिला रोड पर वाक़े गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज की नई इमारत का DIEO रवि कुमार ने जायज़ा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस कॉलेज की नई इमारत में क्लासेस का इनेकाद के ताल्लुक़ से जायज़ा लिया। इन्होंने कहा कि कॉलेज की इमारत की तब्दीली के बाद कॉलेज की कारकर्दगी की हज़्म मामूल कारकर्दगी के मुतालिक से मुआयना किया व इंतज़ामिया को मुख्तलिफ हिदायतें जारी की। गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज అనేది ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల వాళ్ళు కాలేజ్ షిఫ్ట్ కోసం పెట్టడానికి కొత్త బిల్డింగ్లోకి షిఫ్ట్ అయింది। బోర్డు కూడా వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। కొత్త కాలేజీని క్లాస్ లెవెల్ కూడా వాళ్ళు నడపడం జరుగుతుంది। इख्तिताम से खबर नज़र डालते आज की हम सुर्खियों पर। फिर एक बार RTC बस हुई हादसे का शिकार। जिला रंगारेड्डी में पेश आया खौफनाक सड़क हादसे में 21 अफराद हुए हलाक व कई अफराद हुए शदीद जख्मी। अवाम RTC बस में सफ़र करने से हो रहे खौफजदा। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए फिलफौर मसाइल हल करें। निज़ामाबाद कलेक्टरेट में इनेकाद अमल में लाए गए प्रजावाणी में एडिशनल कलेक्टर अंकित ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत तेलंगाना जागृति सदर के कविता का आदिलाबाद में दौरे के मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। मोड़ताड़ से ताल्लुक़ रखने वाली अमरीन बेगम की सेहत नासाज होने के बाइस तिब्बी इमदाद के लिए साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने 2 लाख की LOC की हवाले।
इस्लाही माशरा कमेटी की जानिब से नौजवानों में मंशियात की रोकथाम माशी बुराइयों के खात्मे के लिए 4 नवंबर को मस्जिद मोहम्मदिया में इस्लाही माशरा जलसे आम का इनेकाद, आवाम से शिरकत की अपील। बिचकुंदा में ताअत्तुल का शिकार सड़क के कामों के लिए नौजवानों ने किया एहतजाज मुनज़्ज़िम। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।